کہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ سندھ میں 6 محرم سے 12 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی عائد رہے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی آئی جی سندھ کی درخواست پر لگائی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی آئی جی سندھ کی درخواست پر لگائی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی سعود، آگاہ کیجیے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں محرم حرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آئی جی سندھ کی درخواست پر محکمہ داخلہ سندھ نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا اطلاق جو ہے 6 سے 12 محرم یعنی کہ 5 سے 10 اگست تک رہے گا۔ سندھ بھر میں جو ہے ڈبل سواری پر پابندی رہے گی اور دفعہ 144 کے تحت کسی بھی شخص کو ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہاں صرف 12 سال سے کم عمر بچے، بزرگ اور صحافیوں کو جو ہے اور خاص قانون نافذ کرنے والے جو ادارے کے اہلکار ہیں، صرف وہ جو ہے اس سے مستثنی ہوں گے، باقی تمام شہریوں پر جو ہے اس کا لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں محرم الحرام کی وجہ سے جو ہے سندھ میں 6 محرم سے 12 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے اور سندھ میں 6 محرم سے 12 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی عائد رہے گی۔ موسم پر بات کریں تو ڈی جی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ مون سون کا چوتھا سپیل 6 تاریخ سے بارش برسائے گا۔ 6 سے 9 اگست کے دوران ہلکی اور درمیانی بارشیں ہوں گی۔ ایک اور سپیل 13 اور 14 اگست کو بارشیں برسائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ پھر وہ سلسلہ بڑھتے ہوئے کل شام تک کراچی پہ بھی اثر انداز ہو جائے گا اور کراچی میں کل دوپہر سے یا شام سے ہلکی بارش متوقع ہے، اور پھر پرسوں ہلکی سے تھوڑا سا بڑھ کر ماڈریٹ سپیل بھی ہو سکتا ہے۔ پرسوں جو 2 دن ہیں 6 سے لے کے 8 تک، بلکہ 9 تک، 6 سے لے کے 9 تک کراچی میں متوقع ہے، اور باقی سندھ میں 5 سے لے کے آج سے لے کر 9 تاریخ تک، اور 9 تاریخ کو ہو سکتا ہے صبح تک یہ سلسلہ چلے، اور پھر کچھ چند گھنٹوں کا کچھ اس میں بریک آئے یا گیپ آئے یا ہلکی بارش تھم جائے، اور پھر 10 سے آنورڈ پھر ایک نیا سپیل ایک طرح سے اپروچ کر جائے گا۔ جو ایسٹرن انڈیا پر اس وقت لو پریشر ایریا موجود ہے وہ اپروچ کر کے ہمارے ایریاز کے قریب جب آ جائے گا تو پھر تیز بارش کا سپیل متوقع ہے 10 اگست سے لے کے 13 یا 14 اگست تک پورے سندھ بھر میں، اور مشرقی بلوچستان کے جو اضلاع ہیں نصیر آباد، سبی، کولو، جعفر آباد، اتبار خان اور قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ سمیت ان سب ایریاز میں اچھی تیز بارش دوبارہ سے متوقع ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو جنوبی اضلاع ہیں خزدار، لسبیلا اور مکران ڈسٹرکٹ، ان سب ایریاز میں اچھی تیز بارش دوبارہ سے متوقع ہے۔ یہ جو اگلا سپیل ہوگا یعنی 11 اگست کے بعد 11 یا پھر 12، اس میں 11 سے لے کے 13 یا 14 تک وہ جو چلے گا 10 کی شام سے، بلکہ ہم صحیح طور پر کہیں تو 10 کی شام یا رات سے، اور پھر 13 یا 14 اگست تک وہ سپیل نسبتاً تیز سپیل ہوگا، تو دوبارہ سے ہم کو تیز بارش کے لیے ان دنوں کے لیے تیار کر رہنا چاہیے۔ کراچی میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بونداباندی کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ شام اور رات میں ہلکی بارش کا امکان ہے، اور آج شام سے سندھ کے مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ تھرپاکر، عمرکوٹ، سانگھڑ اور خیر میں بھی آج شام سے بارشوں کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں آج سے 9 اگست تک درمیانے درجے کی بارش بھی متوقع ہے۔ کراچی میں 6 سے 9 اگست تک کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے، اور اگست سے نیا سپیل دستک دے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ نیو ایم اے جناح روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جیل چرنگی سے ادارہ نور حق تک لمبی لائنیں لگنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جیل چرنگی سے ادارہ نور حق تک یہ لمبی لائنیں لگ گئی ہیں گاڑیوں کی۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ نیو ایم اے جناح روڈ کے مناظر ہیں جہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جیل چرنگی سے ادارہ نور حق تک یہ گاڑیوں کی جو قطاریں لگ چکی ہیں، اس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
स्विस सदर्न गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान तब्दील कर दिया है। रवा हफ्ते CNG सेक्टर को गैस की फ्राहमी जारी रहेगी। आज से पीर तक बंद होने वाले गैस स्टेशन अब खुले रहेंगे। यौम आशूर के बायस शहर समेत सूबे भर में गैस की फ्राहमी बिला तातुल जारी रहेगी। तर्जमान स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी रवा हफ्ते गैस की फ्राहमी जारी रहेगी। महकमा जेल खानाजात में तकर्रुर तबादले किए गए। शकील अहमद अरबाब जेल सुपरिटेंडेंट शहीद बेनज़ीराबाद तैनात। नायब अली बाभिन जेल सुपरिटेंडेंट नौशेर फिरोज तैनात हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं महकमा जेल खानाजात में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सरकार ने महकमा जेल खानाजात में जो अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसमें शकील अहमद अरबाब को जेल सुपरिटेंडेंट जो है शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि नायब अली बामन को जो है जेल सुपरिटेंडेंट नौशेर फिरोजला तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अजपूर की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला ने बाकायदा तौर पर इनके तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौड़ियों। बड़े पैमाने की सनतों का अहम सेक्टर सीमेंट की फ़रोख्त में नुमाया कमी। जुलाई में सीमेंट की फ़रोख्त 47.7% कम हो गई। जुलाई 2022 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 47.7% कमी से 20.3 लाख टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2021 में 38.99 लाख टन रही थी। आपको बता रहे हैं बड़े पैमाने की सनतों का अहम सेक्टर सीमेंट की फ़रोख्त में नुमाया कमी देखी गई। जुलाई में सीमेंट की फ़रोख्त 47.7% कम हो गई। जुलाई 2022 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 47.7% कमी से 20.3 लाख टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2021 में 38.99 लाख टन थी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि बड़े पैमाने की सनतों का ये अहम सेक्टर है सीमेंट, जिसकी फ़रोख्त में नुमाया कमी देखी गई है और जुलाई में सीमेंट की फ़रोख्त में 47.7% कमी हो गई, जो कि कमी के से 20.3 लाख टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2021 में 38.99 लाख टन थी। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। अमरीकी करेंसी की तनज़ुली जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे सस्ता। डॉलर 226.15 रुपये से कम होकर 224 रुपये का हो गया। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपये 37 पैसे सस्ता हो चुका। अमरीकी करेंसी सस्ती होने से बैरूनी कर्ज का बोझ 1700 अरब रुपये कम हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स 159 पॉइंट्स इजाफे से 41,586 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया है और सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स 159 पॉइंट्स इजाफे से 41,586 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त माहिर स्टॉक एक्सचेंज शहरियार बट के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिए। अब बिल्कुल देखें, अगर पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल की बात करें तो कुछ बेहतर आदात शुमार नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पिछले 2 रोज़ से जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। आज भी कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और मार्केट में इस वक्त बेहतरीन जो है वो नंबर्स हैं। क्या वजूहात हैं मार्केट में इस पॉजिटिविटी की बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। शरियार भट्ट साहब, शरियार साहब ये बताइएगा कि मार्केट गुज़िश्ता 2 रोज़ से बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। क्या वजूहात हैं? आप लोग स्टॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टॉक माहिरीन हैं, तो क्या रीजन नजर आ रहे हैं? देखिए, रीजन तो बहुत वाज़ेह हैं, आपको भी पता है। जैसे IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान दोबारा से चला गया, IMF से ग्रीन सिग्नल है, उसके बाद से ये रैलीज बनना शुरू हुई हैं। इससे पहले अगर आप पिछला पूरा क्वार्टर देखें, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स भी बहुत डल हो गए थे, एक्टिविटीज ना होने के बराबर थी। अब वॉल्यूम्स ही आना शुरू हो गए हैं और फिर जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं और खास तौर पर जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज हैं। खास तौर पर जो WTI नीचे ट्रेड हो रहा है, $90 के पास आ गया। फिर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि कल कोल प्राइजेस नीचे आए। कोल प्राइजेस नीचे आने के बाद से हमारे सीमेंट सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा। आज आपने अगर स्क्रीन देखी है तो
सीमेंट के स्टॉक्स हैं वो सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो गया है, आज एक दो बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो मार्केट ओवरऑल काफ़ी चीप रेट्स के ऊपर थी, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे थी, तो मार्केट ने इन खबरों का फ़ायदा उठाया है और इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करने को तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल शहरयार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो है वो बेहतर जो है सूरत हाल है और उसकी वजूहत यही है कि एक तरफ तो रुपया जो है उसकी कदर में बेहतरी आती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो मुल्की माशी अदाद शुमार हैं जिसमें एक तरफ IMF के साथ मस्बत जो है वो इम्पैक्टफुल हो रही है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजीद बेहतर। बहुत शबीर अपडेट करने के लिए अपने नाज़रीन को बताएं, पेपर्स बस सर्विस के रूट नंबर 3 को बंद कर दिया गया है। रूट नंबर 3 को मुख्तलिफ सड़कों की अबतर हालत के बायस वक्ती तौर पर बंद किया गया है। लियाकताबाद 10 नंबर गरीबाबाद अंडरपास पर रोड की हालत इंतहाई खराब है। नेशनल स्टेडियम का फ्लाईओवर भी बारिशों के बायस खराब हुआ है। इसे पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नासिर। जी आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, पीपल्स बस सर्विस रूट जो है वो वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है और रूट नंबर 3 है ये जिसे बंद किया गया है। इसका आगाज तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल हुआ था और ये स्टार्ट था इसका 5 स्टार चौरंगी से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर वाक़ई शान चौरंगी तक इसका जो है वो ये रूट मुकर्रर था। लेकिन अब बारिशों के बाद जो कराची की सड़कों की सूरत हाल है उसके पेश नजर से बंद किया गया है। इस रूट पर 3 मुकाम से सड़क जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार थी। गरीबाबाद अंडरपास और इसके अलावा लियाकताबाद नंबर 10 का रोड जो है वो बुरे तरीके से डैमेज था। इसके अलावा एक और ब्रिज जो है वो खराब और वो था नेशनल स्टेडियम पर वाक़ई जो फ्लाईओवर है उसकी हालत भी खराब हुई, जिसकी वजह से इस पीपल्स बस सर्विस को इस रूट से जो है वो अभी बंद किया गया है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि ये फैसला जो वक्ती तौर पर किया गया है। ताहम वज़ीर आला सिंध की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि पीपल्स बस सर्विस के जो रूट्स खराब हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो तामीर किया जाए और रूट्स की तामीर के बाद इन बसों को जो है वो दोबारा चला दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर सनतकार शदीद परेशान हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा है कि कराची की सनतों को गैस प्रेशर नहीं मिल रहा। सुई सदरन गैस CNG की हफ्तावार बंदिश नहीं कर रही। जुलाई में बरामदात 30% से घट गई हैं। हुकूमत गलत अदाद-ओ-शुमार दिखा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, माशी सूरत हाल की बात की जाए, जो कराची के इंडस्ट्री जोन हैं उनको गैस नहीं मिल रही है, मुश्किलात अभी भी बरकरार हैं, जिसको देखते हुए बरामदात जो है पिछले माह अगर देखा जाए 24% घटी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुई सदन गैस ने एक अजीब सा फैसला किया है कि CNG सेक्टर को खोल दिया, 3 रोज़ की बंदिश नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो CNG सेक्टर को खोला है इसके पीछे क्या इनकी कार्रवाई है सुई सदरन गैस की, ये आम लोगों को समझ नहीं आएगी। सुई सदरन गैस के पास ऐसा दिल कहाँ से आ गया कि इतना अवाम पे रहम आ रहा है? ये कैसे अवाम पे रहम खा रही है? ये सिर्फ ड्रामे हैं। असल में 9-10 मुहर्रम को इंडस्ट्री होती है बंद मेजोरिटी, तो इनको गैस बेचनी है। ये गैस बेचने के लिए ये सारा ड्रामा किया है इन्होंने और बात कर रहे हैं मुहर्रम के तकद्दुस की और अवाम की सहूलत की। असल बात क्यों नहीं करते कि हमको गैस बेचनी है? आप मुझे ये बताएं, CNG स्टेशन तो कई बंद ही हो गए, उन्होंने ताले लगा दिए, उन्होंने काम ही छोड़ दिया है और जनरल इंडस्ट्री भी नहीं चल रही होगी। अब इनको गैस बेचनी है तो गैस बेचने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं और बहाना कर रहे हैं मुहर्रम के तक। जावेद साहब, अगर हम देखें कि पिछले माह अगर देखा जाए बरामदात 24% घटी है, आगे क्या देख रहे हैं? बिजली महंगी हो रही है, खाम माल लाने में मुश्किलात हो रही हैं, कैसे चलेगी सनतें? देखिए, हमने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को बुलाया था और उसमें हमने क्लियर कहा था कि एक्सपोर्ट गिर जाएगी। और ये जो 24% या 25% की बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार ने मैनिपुलेशन की है और हम समझते हैं 30 से 35% गिरी है। अच्छा जावेद साहब, अगर हम देखें डॉलर तेज़ी से 200 रुपये से 240 गया, अब 240 से नीचे आ रहा है, 226 पे आ गया। क्या डॉलर तो कहीं से आया नहीं है? देखिए, ये बहुत बड़ा सट्टा हुआ है। अब सवालिया निशान ये है कि सटोरिये कौन थे, गवर्नमेंट की तरफ थे कि पब्लिक में से थे? उनको पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। और जो बैंक्स ने एक्सपोर्टर्स के साथ और इंपोर्टर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, आप बताएं कि जबकि स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है 3 महीने से, जिसका बाप नहीं होता वो यतीम होता है। स्टेट बैंक को यतीम किया हुआ इन्होंने और स्टेट बैंक का गवर्नर बनाने के लिए भी
पार्टियां ये आपस में लड़ेंगे, हमारा बंदा लगाओ, हमारा बंदा लगाओ। जी, जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सेक्टर है, जावेद बिलवानी ने साफ साफ कहा है कि जो गैस नहीं मिल रही है उसकी सनतों की पैदावार शदीद मुतासिर होगी, आगे चल के जो बरामदात मजीद मुतासिर हो सकती है। साथ ही कहा है कि जो डॉलर की कदर में तेजी से उतार चढ़ा हुआ है, इसमें बैंक मुलव्वस है और फौरी तौर पर हुकूमत इसके खिलाफ जो एक्शन ले। और साथ ही जो सबसे अहम बात के बिजली की जो कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की सप्लाई की फराहमी मुश्किलात, इन सनतें नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें अपडेट कर थे। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। तो डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और इंपोर्ट पर पाबंदी के अमल ने दालों की कीमतें बढ़ा दी हैं। दाल 20 से 40 रुपए तक महंगी हो गई है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। लाल मसूर 300 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो की हो गई है। साबुत मसूर 260 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चने की दाल की कीमत 220 रुपए से बढ़कर 240 रुपए और माश की दाल 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए हो गई है। ताजरों को बताना ये है कि बस डॉलर अभी जैसे 180 से 240 तक चला गया, आपको सारे मुल्क को वो पता है। तो ये तो सारी इंपोर्ट वाली दालें हैं, इंपोर्ट ही होती हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूक्रेन से, कनाडा से, यहाँ से आती हैं। तो फिर इस वजह से इनका रेट ये हो गया है और इंपोर्ट पे भी पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है। तो यही वजूहत बड़े होलसेलर बता रहे हैं। शहरियों को कहना है कि महंगाई का ये आलम है कि दालों समेत हर चीज़ महंगी हो चुकी है। गोश्त के बराबर चिकन ले लो 450 रुपये, दाल भी 250-300 रुपये हो गई है। क्या फ़र्क रह गया दाल और सब्जी में। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई के अवामिल को ख़त्म करके अशिया खुर्दनोश को सस्ता किया जाए। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली और सरकारी मुदाखलत का मामला। जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। हाफिज मेमूर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक तैनातियों पर सवालात उठा दिए। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में सियासी आरोज को रोका जाए, बैलेट पेपर्स को दोबारा छापा जाए। MQM किसी मकसद के लिए लाया गया तो मज़ाहमत करेंगे, किसी को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। झंडे लगाकर काम किए मगर सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमत को मजबूर किया कि उसने एग्रीमेंट किया, बात चीजें उन्होंने मंजूर कर दी हैं। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब मेयर होगा। इसी तरह और बहुत सारी चीजों के ऊपर इसमें सिंध असम्बली में तरमीम पेश की जा चुकी है। अब डिलेइंग टैक्टिक्स से वो इसको रोकना चाहते हैं। हमने अदालत से ये भी जो है वो हमारी पिटीशन में ये तमाम चीजें मौजूद हैं और अगर कानून का बहाना बनाकर ये बल्दियाती इलेक्शन को आगे करते हैं तो ये खुद अदालत का फैसला मौजूद है और इंशाअल्लाह अदालत इनको तंबीह भी करेगी कि अब तक तुमने कानून साजी क्यों नहीं की। तुम सिर्फ कानून साजी करने को इसलिए रोकते हो ताकि बल्दियाती इलेक्शन से फरार इख्तियार करें और ये सब मिले हुए हैं कि किसी तरह बल्दियाती इलेक्शन ना हो। कराची में एक और मेगा मंसूबे पर तरक्याती काम का आगाज हो गया है। मलिर टैंक चौक से सफूरा चौरंगी तक रेड लाइन के पहले मरहले पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तेज़ी के साथ काम जारी है। ग्रीन लाइन के बाद एक और मेगा प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर तकमील है, जिसे रेड लाइन BRT का नाम दिया गया है। रेड लाइन BRT के इस वक्त ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ और ये ट्रैक शुरू होगा मलिर कैंट टैंक चौक से लेकर सफूरा चौरंगी तक। पहले मरहले में इसे तैयार किया जाएगा। अभी इब्तदाई तौर पर मलिर टैंक चौक से जो है वो काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर दोनों साइड्स पर, रोड के दोनों अतराफ लेफ्ट और राइट साइड पर जो है वो पहले नाले की तामीर की जा रही है। उसके बाद इसके ऊपर रोड जो है वो बिछाया जाएगा। ताहम इस मुकाम पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सफूरा चौरंगी का मुकाम है। यहाँ पर आकर पहले मरहले में ये ट्रैक इख्तिताम पजीर होगा और यहाँ पर ट्रैक को जो है वो बिछा दिया गया है। अब दूसरा मरहला जो है वो सफूरा चौरंगी से शुरू होकर मौसमियात और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पर ये मनसूबा पहुँचेगा। तो ये मनसूबा बताया गया है, सिंध हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा जो है वो तामीर किया जा रहा है और वर्ल्ड जो एशियन बैंक है उसके ताउन से ये मनसूबा जो है वो तैयार होगा। यहाँ पर तकरीबन ये 26 किलोमीटर तवील ट्रैक होगा जिसके ऊपर तकरीबन 21 स्टेशंस जो है वो बनाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन रूट होगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पर इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे क्योंकि ये वो ट्रैक है जहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स की बड़ी तादाद है और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर इससे मुस्तफ़िद होंगे। इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 3-3.5 लाख अफराद जो हैं वो इस बस सर्विस से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, सफ़र कर सकेंगे। जदीद बसें हैं,
ये और हाइब्रिड बसें होंगी। इसके अलावा बायोमेथीन गैस जो है इसमें इस्तेमाल की जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर अब इसका काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। 2 साल का टाइम दिया गया था कि 2 साल के अंदर इसका ट्रैक जो है वो तामीर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद टोटल जो टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम 3 साल का टाइम फ्रेम तय किया गया है, जिसके बाद इस ट्रैक पर जो है वो रेड लाइन की बसें भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जल्द ऑरेंज लाइन भी जो है वो कराची में चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता शहरियों के ट्रांसपोर्ट है वो हल होने की जानिब जा रहे हैं और रेड लाइन। बहुत शुक्रिया आदिया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आलमी मार्केट में खाम तेल 6 माह की कम सतह तक गिर गया। एक हफ्ते में अमेरिकी खाम तेल 9.50% और लंदन बर्नेट ऑयल 15% से ज़ायद सस्ता हो गया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर सस्ता होने के साथ खाम तेल सस्ता होने से ईंधन की लागत में कमी होगी। हफ्तावार रिपोर्ट में तेल की तलब में कमी की खबरों पर कमी का रुझान है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क सेशन में अमेरिकी खाम तेल $1.50 सस्ता होकर $89.16 फी बैरल तक गिर गया। न्यूयॉर्क सेशन में लंदन ब्रेंट ऑयल $2.02 सस्ता होकर $94.76 फी बैरल तक गिर गया। रवा हफ्ते अमेरिकी खाम तेल $9.56 सस्ता होकर $89.16 फी बैरल तक गिर गया। रवा हफ्ते लंदन ब्रेंट ऑयल $15.36 सस्ता होकर $94.64 फी बैरल तक गिर गया। आलमी मार्केट में लंदन ब्रेंट ऑयल 6 माह की कम सतह तक गिर गया है। माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान में डॉलर सस्ता होने और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल $100 से नीचे रहने से पाकिस्तान में ईंधन की कीमत में कमी की तवक्को है। शहर में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शाहराहों की हालत अबतर होती जा रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज लाइसेंस ब्रांच वाला रोड भी टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज लाइसेंस ब्रांच पर मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, कराची में हालिया बारिशों के बाद यहाँ की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। इस पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक सड़क पर मौजूद हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि सड़क की जो है वो क्या हालत है। यहाँ पर जब बरसात का पानी जमा हो गया तो उसकी निकासी आप तो कर दी गई, मगर सड़क के बीचों बीच में बड़े गड्ढे जो पड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है। कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि वो दिखा सकें कि किस तरह यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो है कोरंगी लाइसेंस ब्रांच का दफ्तर जो है वो भी मौजूद है। वहाँ पर भी लोग जो है बड़ी तादाद में आते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। इसके साथ साथ लाइसेंस ब्रांच के साथ वाली गली और सड़क के साथ वाली जो गली है वो भी काफ़ी जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। उसकी भी अभी तक मरम्मत जो है वो नहीं की जा सकी है। तो लोगों को काफ़ी जो है यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। शाम के औकात में ये यहाँ से जो है वो कोरंगी नदी जाने और यहाँ से आने वालों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से दफातर से जाने वाले जो अफराद हैं वो ट्रैफिक के जो है वो रवानी की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात जो है उनको पैदा हो जाती है। और सड़क पर जो गड्ढे हैं उसके अजियत जो है वो उससे अजियत से जो 2-4 हो जाते हैं। मकीनों का यही कहना है कि यहाँ से जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं उनका भी यही कहना है कि जल्द जल्द सड़क की जो है वो मरम्मत की जाए। बरसात में जो है यहाँ की जो सड़कें हैं उनका हाल जो है काफ़ी बुरा हो जाता है। बरसात का जो अब सिलसिला जो है वो थम गया है, तो अब इस सड़क की जो फौरी तौर पर मरम्मत की जाए ताकि उनको यहाँ से गुजरने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना जो है वो ना करना पड़े। सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को ओछे हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता और जबरों सख्तियों से कश्मीर भाइयों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। यौम यकजहती कश्मीर पर जारी पैगाम में शर्जील मेमन ने मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर की खुसूसी हैसियत को फौरी बहाल करे। मोदी सरकार के इकदाम और पॉलिसियों से खित्ते में अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा इनका नोटिस ले। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध की आवाम कश्मीर भाइयों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। सिंध भर में कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं।
सूबाई वज़ीर तरक्की 19वां और जनरल मैनेजर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वुमेन विंग सिंध सैयदा शहला रजा की क़ियादत में डिस्ट्रिक्ट मलीर यूथ हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने सिंध असम्बली का दौरा किया। खिलाड़ियों ने 30 जुलाई को लाहौर में मुनक्कद पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर ज़बरदस्त दाद समेटी। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के निगरान सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन और कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर शहला रजा ने ईवान को खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये 30 साल से में पहली मर्तबा है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप में कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर ने 712 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने कहा कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के मेहमान खसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने फाइनल मैच में डिस्ट्रिक्ट मलीर यूथ हॉकी क्लब को फेवरेट करार दिया था। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद सितंबर में पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे और जिसके लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तैयारियां अरूज पर हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद। इस वक्त हम कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और कराची का नेशनल स्टेडियम अगर हम देखें तो उसकी खूबसूरती अपने उरूज पर है, इसलिए कि 17 साल बाद इंग्लैंड की मेज़बानी करने के लिए कराची का नेशनल स्टेडियम तैयार है। इंग्लैंड के साथ 60 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें से 4 की मेज़बानी कराची का नेशनल स्टेडियम करेगा, जबकि 3 मैचेस जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। तो कराची के नेशनल स्टेडियम में 13 पिचों पर मुश्तमिल जो स्क्वायर पर काम का आगाज़ हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से गैर मुल्की मिट्टी कही गई थी और इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर थे वो भी आए, उनकी निगरानी में इन पिचों को देखा गया और स्क्वायर जो है वो मुकम्मल तौर पर खूबसूरत स्क्वायर जिसमें 13 पिचेज हैं, उसके ऊपर बारिश के बाद चूँकि मौसम अच्छा है ग्रास लग चुकी है और उसकी कताव बरीद की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टैंड्स के अंदर जैसे कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा था कि नई कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, उनकी आमद भी किसी वक्त मुतवक्को है। तो 20 सितंबर से जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो 4 T20 का मेला सजेगा, उसके लिए तैयारियां जो है अरूज पर है। 17 साल बाद आ रही है तो शायकीन क्रिकेट जिनका ताल्लुक कराची से वो भी बड़े खुश हैं कि एक इंटरनेशनल मैच होगा और बड़ी टीम को कराची के लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए जो आएंगे, तो यकीनन कराची वालों का इंतज़ार है। और दूसरी तरफ नेशनल स्टेडियम की जो तैयारियां हैं वो भी आखिरी मराहिल पर हैं, पिचेस तैयार हैं, ग्राउंड लश ग्रीन है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के लिए इंटरनेशनल मेयार की नई सीटें किसी वक्त भी आ जाएंगी और उनको मुख्तलिफ इंक्लोजर में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद कराची का नेशनल स्टेडियम 4 T20 मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार होगा। जी शुक्रिया महमूद।